Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, as you all can see that we have finished the fourth chapter, that is rational numbers. So you all are having your exam on 21 I think. शायद से 21 या 20 को आपका मैथ्स का एग्जाम है. Okay, so I know all of you are prepared, but one suggestion for all of you. चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं प्लीज़ उसको सॉल्व कर दीजिएगा, बिकॉज द पेपर इज़ MCQ बेस्ड एंड आपको उसी तरह के उसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे, बिकॉज द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो विल कम इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म. जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं दैट कैन बी आई कैन गिव यू 4 ऑप्शंस. ठीक है, मैं आपको चार ऑप्शन दे के वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दे सकती हूँ. द डिजिट्स विल बी चेंज इन मैथ्स बिकॉज द क्वेश्चंस आर नॉट ऑलवेज सेम, ओनली द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन इज सेम. सो जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपका क्लियर होगा, सो आई नो द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास आर गोइंग टू स्कोर 20 out of 20. माई क्लास here means all the 3 sections, 7th A, B and C. Okay, so I am doing the quick revision of the chapter, master revision video. It will contain all the concept of rational numbers. So what are natural numbers? Natural numbers are the counting numbers. जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर. 4 ऑप्शन दिए, आपको चूज करना है कौन सा रैशनल नंबर है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, होल नंबर्स. अगर आपको डेफिनेशन पता है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई इन माय कमेंट सेक्शन दैट व्हाट आर होल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. ओके, तो जीरो को इंक्लूड करके आप जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स. सो माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज नेम अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. So you have to reply me about this question in my comment section and I want everybody's reply. Name the whole number which is not a natural number. Okay, now next thing which I want to explain you is integers. Integers किसे कहते हैं? What are integers? This is from your first chapter. You all know about integers. All natural numbers. अगर आप लोगों को पता है कि what are integers, please pause the video and reply to me in the comment section. All natural numbers, zero and negative of the counting numbers. Negatives of the counting number. ये आपके 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर हैं, इनके negatives, इनके positives प्लस जीरो, ठीक है, जीरो को इंक्लूड करके are called integers. What are integers? All natural numbers, zero and the negatives of the counting numbers are called integers. Now what are fractions? Please tell me. I have explained you about fractions also. There was a chapter in your maths book. So please tell me what are fractions. Fractions are the numbers written in the form a upon b and it is a part or a segment of a something. It is a part or a segment of a whole. जैसे कि 2/3, that means there are total 3 parts out of which 2 parts. This is how we will represent 2/3. 2 will be shaded, right? So this is the fraction representing 2/3. Now coming to the name of the chapter, that is rational numbers. So I want everybody's reply in the comment section if you know the definitions. The numbers which can be represented in the form of p/q where the value of q is not equal to 0. जहाँ पे जिनको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वेयर द वैल्यू ऑफ q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, वेयर p and q आर इंटीजर्स. दैट मीन्स इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, राइट? सो नाउ टेल मी व्हाट आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 types, positive rational numbers and negative rational numbers. Okay, so what are positive rational numbers? A rational number is said to be positive if its numerator and denominators are either both positive or both negative. यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हों या फिर दोनों पॉजिटिव हों, then it is a positive rational number. Now coming to the negative rational number. A negative rational number is said to be negative if its numerator and denominator
are such that one of them is positive and one is negative. One of them is positive and one is negative. Negative, positive, positive, negative. So these types of rational numbers are called negative rational numbers. Now the properties related to rational numbers. Okay, one question from all of you. Okay, 1/0, what will we say to this? Is it a rational number? If yes, reply with yes. If no, reply with no. So students, whosoever has commented that no, your answer is correct. No, 1/0 is not a rational number. It is meaningless, or either you can say it's not defined, okay, or not meaningful. Not meaningful. So 1/0, q can never be 0. So 1/0 is not a rational number and it is meaningless, not defined or not meaningful. Now the three important properties which are related to rational numbers. Okay, if p by q is a rational number, अगर कोई भी rational number है p/q, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से में आप एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द सेम वैल्यू, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द वैल्यू डज नॉट चेंज. द वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज. ओके, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2/3, यू आर मल्टीप्लाइंग इट बोथ बाई 2, सो इट विल बी 4/6. अब आप इसको रेड्यूस करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. सी द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज. टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी 12/15. सो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. Again we have got 4/5. So this is the first property of the rational number. If we are multiplying the numerator and denominator by the same number, same non-zero number, the value does not gets affected. Since it's a master video, for the revision I have to cover all the topics, so I may be a little bit fast. कहीं पर अगर मैं थोड़ी सी फास्ट हो जाती हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा दोबारा प्ले कर लीजिएगा वो पर्टिकुलर पार्ट. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, इफ़ p by q इज़ अ रैशनल नंबर, अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी कॉमन डिविज़र से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो भी वैल्यू जो है कॉमन नॉन ज़ीरो डिविज़र, ठीक है, ज़ीरो तो होना नहीं चाहिए, इट शुड बी नॉन ज़ीरो, सो द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग 28/16. अगर आप दोनों को किससे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, सो इट इज़ 7/4. सो द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि 28/16 को जब आप रिड्यूस करेंगे, 4 7 ज़ा 4 4 ज़ा, अगेन इट इज़ 7/4. So this is second property for the integer. Now the third property. The third property for the sorry, not integer, for rational numbers. So the third property is that equivalent rational numbers. ठीक है, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से, सेम नॉन ज़ीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो यू यूज टू गेट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. जैसे कि लेट्स टेक वन एग्जांपल. हाउ डू वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स? 2/3. तो आई एम आस्किंग यू टू राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. अगर इसके नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आपको पता है तो यू कैन रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से क्या कर दिया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया. अगेन आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से 2/3 के, 4/6 में नहीं करेंगे, 2/3 में अगेन आप पहले 2 से किया था, अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 6/9. नाउ 2/3 मल्टीप्लाइड एंड दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से, 8/12. ओके, नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब आप इसकी वैल्यू भी चेक कर लीजिए. 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा. See the value remains unchanged.
Two rational numbers are said to be equivalent if one can be obtained from the other by multiplying its numerator and denominator by the same non-zero number. वो तभी इक्विवेलेंट हो सकते हैं जब आप क्या करेंगे, आइदर मल्टीप्लाई और आइदर डिवाइड. अब जैसे 4/6 एंड 2/3 आर सेड टू बी इक्विवेलेंट. वाई दे आर इक्विवेलेंट? क्योंकि जब आप 4/6 और 2/3 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, आपका जो है आंसर सेम आ रहा है. सो दैट्स वाई दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. या तो मल्टीप्लाई करिए या तो डिवाइड करिए, आपका आंसर सेम आना चाहिए, राइट. नाउ वन मोर थिंग वॉज देयर, वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन फॉर द रैशनल नंबर्स. मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट. वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन फॉर द रैशनल नंबर, what you have to do, you have to make the denominator positive. and how do we do? ये तो सबको याद हो चुका होगा करते करते. multiply the numerator and denominator by -1, then the denominator will be positive. Okay, so to make the denominator positive you have to multiply its numerator and denominator by -1 to get an positive equivalent rational number with positive denominator, right. तो अब आपको जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल -4/7 इज रिटन, एक्सप्रेस -4/7 विद न्यूमरेटर 28. तो आप -4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 28 बन जाए. क्या बन जाए? 28 बन जाए. तो -4 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा -7. सेम गोज विद द डिनोमिनेटर. अब आपको वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी होगी. ओके, सो इट विल बी 28 अपॉन 7 7s are 49, राइट. हाउ डू वी ऑब्टेन 7 7s are 49? बिकॉज देर वॉज ओनली वन नेगेटिव रैशनल नंबर, सो द डिनोमिनेटर हैज़ नाउ बिकेम नेगेटिव. देखिए यहाँ पे आपका हमेशा पहले किया जाता है, लेकिन अब बाद में आपको नेगेटिव मिल गया है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको फिर से पॉजिटिव कर दीजिए. मेक इट पॉजिटिव एज वी डिड अर्लियर. सो -28 अपॉन 49. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज टू डू. अगर आपको यहाँ पे देखिए कम था, आपको इसको ज़्यादा में किया था तो आपने मल्टीप्लाई किया. अगर आप इसका अपोजिट क्वेश्चन मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन मिल जाए कि -36, you have to make it 12. you have to make the denominator -12. ठीक है, -12 करना है, तो आप क्या करेंगे, तो -36 को आप किससे डिवाइड करेंगे, -36/4 ले लेते हैं आप. -36/4 को आप किससे डिवाइड करेंगे जिससे कि वो 12 हो जाए न्यूमरेटर. सो डिवाइडेड बाय, अब -36 को पहले, अब 36 को पहले 12 से डिवाइड करिए. 12 3s are 36, वी ऑल नो दैट. तो ये आपको 3 से डिवाइड करना होगा. किससे डिवाइड करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा. सो -36 डिवाइडेड बाय 3. अब आपका ये डिनोमिनेटर से भी होगा. सो इट विल बी -12. अब नीचे आपका 4/3 आ गया, क्योंकि 4/3 तो आपका सॉल्व हो नहीं सकता. इट इज़ एन इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन. तो अब आप इसको क्या कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस अभी आपकी बुक में आए नहीं हैं, पर आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए. -12 डिवाइडेड बाय 4/3. आप क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन. अब आप इसको सॉल्व करिए. -36/4. सी अगेन वी हैव ऑब्टेन्ड द सेम. हमें वही सेम चीज़ मिल गई, राइट. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर नॉट गिवन इन योर बुक. सो नाउ व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन यू, एक्सप्रेसिंग द रैशनल नंबर्स इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. A rational number p by q is said to be in its standard form if q is positive and p and q have no other common divisor apart from 1. यानी कि कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी माना जाएगा जैसे कि 2/3 is a standard form, because the HCF of 2 and 3 is 1. They are said to be co-primes. तो कोई भी रैशनल नंबर तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा जब आप उसे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. It is irreducible and the denominator should be positive. Only then it is said to be a standard form of a rational number. Now अगर आपको दे दिया जाए फ्रैक्शन -32/40,
यू हैव टू रिड्यूस टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, 32 और 40 का पहले निकालेंगे HCF। तो व्हाट इज द HCF ऑफ 32 एंड 40? 32 1 जा 32, आपका यहाँ 8 आया, 8 4 जा 32, तो आपका HCF आया 8। नाउ डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ बाय द HCF। So it will be 8 4 the 32, 8 5 the 40. So it is minus 4 upon 5. Now it is expressed into its standard form because 4 and 5 they do not have any other common factor apart from 1. Now there was one more thing, representation of rational numbers on real line. Representation of rational numbers on real line. How do we represent? मैंने आपको समझाया था, again I am explaining you. जिन स्टूडेंट्स की कोई भी वीडियो मिस हो गई होगी उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रिप्रेजेंट 13/5 ऑन द नंबर लाइन। तो 13/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और -13/5 हो या 13/5, फर्स्टली यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इनटू अ मिक्स्ड फॉर्म। आप इसे मिक्स्ड रैशनल नंबर के फॉर्म में करेंगे। सो इट विल बी 2 3/5, राइट। तो 2 3/5। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि आपका 2 तक तो आपको रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद 2 और 3 के बीच में यू हैव टू मेक हाउ मेनी डिविजन्स? 5 डिविजन्स। हाउ मेनी डिविजन्स? द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिविजन। 2 तो पूरा कंप्लीट होगा, मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, 0 1 2, और 2 और 3 के बीच में द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिविजन्स। How many divisions should be there in 2 and 3? Between 2 and 3, 1 2 3 4, ये पांचवा जो है वो 3 होगा। So 1 2 3, so this is 13/5. Clear? This is 13/5. 1 2 3 4 5, तो 2 3/5, तो 2 और 3 के बीच में I have given 5 divisions. And every positive rational number is greater than 0, every negative rational number is less than 0. कोई भी positive rational number है वो तो वो 0 से बड़ा होगा. If there is any negative rational number, it is less than 0. And the negative rational numbers lie on the left side of 0, and the positive rational numbers lie on the right side of the 0 on the number line. Now how to compare two rational numbers? Express each of the two given rational numbers with positive denominator. अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप पहले पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद आप उसका LCM लेंगे. आफ्टर टेकिंग द LCM आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2/3 and 7/8 इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू कंपेयर विच वन इज ग्रेटर. तो इसमें ना दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, सो वी डोंट नीड टू मेक एनीथिंग पॉजिटिव. सो द LCM ऑफ 3 and 8 इज 24. तो आप इसका LCM ले लें, ठीक है. 16/24, 21/24. नाउ इट इज़ ईजियर टू कंपेयर विच वन इज़ ग्रेटर. ऑब्वियसली दिस वन इज़ ग्रेटर, राइट. तो आप इसी तरह से कंपेयर करेंगे. नेगेटिव में जो स्मॉल होता है वही बड़ा होता है. मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ नेगेटिव रैशनल नंबर्स का भी, जहाँ पे कंपैरिजन हो, ठीक है. 2/-3 -4/5. वी हैव टू कंपेयर दीज टू. तो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द नेगेटिव डिनोमिनेटर इनटू अ पॉजिटिव. तो मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया. सो इट इज़ -2/3 and -4/5. Now what we have to do, we have to take the LCM of the denominators. So LCM आपका 15 होगा, right. It is now -10/15 -12/15. Now you all know that कि नेगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा. So -10/15 is greater. So I hope now you can compare the rational numbers also. Now how to find out the rational numbers between two numbers? कैसे आप rational number निकाल सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन दिया है -3 और -4 के बीच में निकालने हैं 4 rational numbers. How many rational numbers? 4. For that you are going to multiply, क्योंकि 4 है तो 4 + 1.
multiply the numerator and denominator by 5. Here also multiply the numerator and denominator by 5. Now it is 15 upon 5 minus 15 upon 5 minus 20 upon 5. Now can you find out 4 rational numbers between them? Minus 16 upon 5 minus 17 upon 5 minus 18 upon 5 minus 19 upon 5. So we have got 4 rational numbers between minus 3 and minus 4. So this is how we find out the rational numbers between the two rational numbers. So I have covered almost all the topics. Now addition of rational numbers and subtraction, multiplication, इसके लिए आप क्या करिएगा, previous links देख लीजिएगा. अगर फिर भी कोई problem है तो you can comment down in the comment section. I will explain it in the next video, and from the next video we are going to start the new chapter. Okay students, have a great day ahead. Subscribe the channel and press the bell icon.